السلام علیکم C49 نیوز کے ساتھ میں ہوں لائبہ شیخ۔ چلتے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس کی طرف۔ ہمارے نمائندے محمد سلیم اشرف C49 نیوز کی رپورٹ کے مطابق پتوں کی شہید صوبیدار آصف کی پوری فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق تدفین میں فوجی افسران اور جوانوں کے ساتھ معززین علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آرمی آفیسر نے شہید کے والد کو پاکستانی جھنڈا، شہید کے بیجز اور تصویر پیش کی۔ صوبیدار آصف گزشتہ شب دوران ڈیوٹی ٹریفک حادثے میں شہید ہوئے۔ شہید محمد آصف کے سوگواران میں 3 بیٹیاں، 1 بیٹا اور بیوہ شامل ہیں۔ تدفین میں شرکاء کی جانب سے نعرے تکبیر کے نعرے لگائے گئے، فضا اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھی۔ وادی لیپا نمائندے حافظ ابرار کی رپورٹ کے مطابق لیپا گارڈ اور محکمہ صحت عامہ کی جانب سے پہلی بار وادی لیپا میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے وادی لیپا کے مختلف علاقوں لیپا خاص نوکوڈ چننیا کے مقام پر لوگوں کو ٹریننگ دی گئی، جس میں قدرتی حادثات سے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے اور عوام کو فوری فرسٹ ایڈ کیسے فراہم کی جا سکتی ہے کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا گیا۔ اس موقع پر لیپا گارڈ، محکمہ صحت عامہ، ریسکیو 122 سمیت دیگر محکموں کے اہلکاران اور آفیسر سمیت بلدیاتی نمائندگان، پروفیسر صاحبان، طلبہ اور عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ انتظامیہ کی جانب سے DC ہٹیاں والا سعید اشفاق گیلانی، SP جہلم ویلی اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر طاہر رحیم مغل نے خصوصی شرکت کی اور گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وادی لیپا میں لیپا گارڈ اور محکمہ صحت عامہ کی جانب سے پہلی بار وادی لیپا میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا اور اس تسلسل کو جاری رکھا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بنیادی فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ ہر بندے کو سیکھنی چاہیے تاکہ قدرتی حادثات کی صورت میں کسی بھی بڑے حادثے سے عوام کو محفوظ رکھا جا سکے۔ عوام نے اس موقع پر لیپا گارڈ اور محکمہ صحت عامہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور بہترین انتظامات پر مبارکباد پیش کی۔ عملی مشقوں کا مظاہرہ لیپا خاص نوکوٹ اور چننیا کے مقام پر کیا گیا، جو کہ اپنی نوعیت کے منفرد پروگرام اور وادی لیپا میں پہلی بار منعقد کیے گئے، جس کے تسلسل کو جاری رکھنے کا لیپا گارڈ اور محکمہ صحت عامہ نے عزم کا اظہار کیا۔ پاک پتن سے رپورٹ کریں ہمارے بیورو چیف محمد عباس ٹوکر کی رپورٹ کے مطابق جنرل الیکشن 2024 کے لیے الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے تمام تر تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار قومی ووٹر ڈے 2023 کے موقع پر ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر پاک پتن سید غلام محی الدین شاہ گیلانی نے پاک پتن کے عوام کے نام پیغام دیتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ ایک مقدس امانت ہے، اسے ذات، برادری، تعصبات یا کسی بھی قسم کی ترغیبات سے بالاتر ہو کر قومی اور ملکی مفادات کے لیے استعمال کریں۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ عوام 8 فروری 2024 کے روز اپنے ووٹ کی ادائیگی کا اہم قومی فریضہ لازمی ادا کریں۔ ووٹ کی معلومات کے حوالے سے سید غلام محی الدین شاہ گیلانی نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے پیج 3800 نمبر اپ ڈیٹ کیا جا چکا ہے۔ اب پاکستانی کوئی بھی ووٹر اپنے قومی شناختی کارڈ کا 13 ہندسوں والا نمبر 3800 سینڈ کرے تو اسے اپنے ووٹ کے حوالے سے اسے معلومات دستیاب ہو جائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں جہاں سے ہمارے نمائندے سجاد حفیظ احمدانی سے۔ محمد سرفراز خان احمدانی مرحوم کی رسم کلخوانی ہوئی۔ مرحوم کے بڑے بیٹا شراز کی دستار بندی دادا ظفر اقبال نے کی۔ سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی اور بیان مولانا طالب کریمی، مولانا محمد سجاد احمدانی، حافظ محمد رسول بخش نے پڑھائی۔ سیاسی رہنماؤں نے مرزا شہزاد خان ہمایوں، محمد ناصر، محمد ایوب ناصر، مرزا شفقت اللہ عرب ہنی، اسد ملک، فیاض ببر، ملک رشید ببر، ملک سجاد ببر، ورثہ اکرام ظفر اقبال احمدانی، ماسٹر سیف اللہ احمدانی، محمد اعظم احمدانی، شہزاد اقبال احمدانی، غلام یاسین احمدانی، پروفیسر جمشید ظفر احمدانی، جاوید اقبال احمدانی، قاسم احمدانی، شفیق احمد، ماسٹر غلام فرید احمدانی، کلیم احمدانی، حفیظ اللہ احمدانی، سجاد حفیظ احمدانی، طاہر جاوید، عامر جاوید نے شرکت فرما کر ثواب دار حاصل کیا۔ گوٹکی سے ڈسٹرکٹ رپورٹر عرفان قریشی کی رپورٹ کے مطابق گوٹکی پولیس کا سماجی برائیوں کے خلاف کارروائیاں تیز۔ تھانہ اے سیکشن گوٹکی پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے فحاشی کے اڈے پر ملزمہ سگیرہ عرف نانی کے گھر پر چھاپہ مار کر 5 عورتوں سگیرہ عرف نانی، حنیفہ، شمیم، بلو، مختارہ اور 3000 رقم سمیت گرفتار کر لیا۔
जबकि शौकत शेख, अली शेर, धंधू और 2 नामलूम मुलजिमान पुलिस को देखते ही फरार हो गए। पुलिस गिरफ्तार औरतों को थाना पे ले आई। गिरफ्तार औरतों और फरार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में पुलिस विकेट इमरानी लारू कोयटा रोड तहसील डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद में पुलिस ने दौरान चेकिंग एक मेहरान कार को रोकने का इशारा किया, जो कार ड्राइवर ने तल्ख कलामी के बाद कार नहीं रोकी और कुछ देर बाद कार ड्राइवर अपनी कार और दीगर 2 से 3 मोटरसाइकिल्स पर सवार 10 से 12 नामलूम अफराद के साथ पुलिस चौकी पर आए और मोहम्मद बख्श उर्फ जलाल जखरू पर हमला कर दिया और लाठियों का इस्तेमाल करके तशद्दुद किया। बाद में जवाबदार पुलिस चौकी पर मौजूद प्राइवेट रिपीटर गन लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे के जरिए 2 जवाबदारों की शिनाख्त अहमद इमरानी और जमान इमरानी नाम से हुई, जो के गोट सोजोरू ना खान इमरानी के रहायश थे। उन्होंने खिलाफ थाना सदर में शिकायत दर्ज करवा दी गई, जिस पर मुकामी पुलिस मजीद मसरूफ कार्रवाई अमल है। मांगा मंडी C49 न्यूज चैनल के नुमाइंदे मलक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी शहर गिरदनवाह में बल्कि पूरी तहसील रायविंड के इलाके में, जिनमें चौहंग, सुंदर अड्डा, लोहारा वाला खुआ, मोहनवाल अड्डा, अराई अड्डा, पाजियां अड्डा, रायविंड शहर इर्द गिर्द बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड के साया तले डीलर दुकान धड़ल्ले से ब्लैक पे फरोख्त कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने जानबूझकर आंखें बंद करके खामोशी इख्तियार कर रखी है। गंदम के सीजन में हर साल की तरह इस वक्त भी मसनूई किल्लत पैदा करके डीलरों ने यूरिया खाद नायाब कर रखी है और किसान परेशान। यूरिया खाद 3400 वाली बोरी 7300 रुपए तक पहुंच चुकी है और DAP खाद का सरकारी रेट तकरीबन 13,000 रुपए और ब्लैक में इस वक्त 14,000 से लेकर 15,000 रुपए तक फरोख्त हो रही है। मुतलका महकमा खामोशी किसानों का जालिम डीलर और सूदखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। काश्तकारों ने कमिश्नर लाहौर से फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक खाद सरेआम ब्लैक में फरोख्त होने लगी और मार्केट में हर साल की तरह यूरिया खाद नायाब हो गई। किसान दरबदर की ठोकरें खाने लगे। मुतलका इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सूदखोर डीलर माफिया किसानों को बेदर्दी से लूटने लगे। इन सूदखोर डीलरों को कोई पूछने वाला नहीं। किसानों ने पुरजोर वज़ीला पंजाब मोहसिन नकवी, कमिश्नर लाहौर और खामोशी इख्तियार करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड मुतालबा किया कि यूरिया खाद को कंट्रोल रेट पर करीबी बनाया जाए और एक ज्यादा रेट वसूल करने वाले डीलरों के खिलाफ फौरी FIR दर्ज करके इनको कानून के कटहरे में लाया जाए। चाकोर PP 132 से MP के मजबूत उम्मीदवार अलहास मलक मोहम्मद आजम अवाम के हुकूक की जंग लड़ने के लिए मैदान में आ गए। मलक मोहम्मद आजम का कहना था कि मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए अपने वोटर सपोर्टर से सलाह मशवरे के बाद बहुत जल्द पार्टी का ऐलान करूंगा और अवाम के वोट की ताकत से मुखालफिन को इबरतनाक शिकस्त दूंगा। थाना सदर शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दौरान वारदात राहगीर को फायर मार कर फरार होने वाले गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने 9 नवंबर की रात को इलाका थाना सदर शाहकोट में सकलैन नामी राहगीर को सफदराबाद रोड पर दौरान वारदात फायर मारा और फरार हो गए थे। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना नबील उर्फ बीला, अरसलान उर्फ निशानी और हुसनैन उर्फ गुड्डू शामिल हैं। मुलजिमान से मुख्तलिफ वारदातों में छीनी हुई लाखों रुपए की नकदी और असला बरामद कर लिया गया है। सरगर्म डकैत गैंग से रोड रॉबरी, चोरी समेत 10 वारदातों का सुराग मिल गया है, जबकि दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। मुलजिमान असला के जोर पर राहगीरों से नकदी और कीमती सामान छीन लेते थे। DPO ननकाना साइद अजीज ने कामयाब कार्रवाई पर SHO कामरान शहजाद और हमराही टीम को शाबाश दी है। DPO का कहना है कि जाए पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग किया जा चुका है। अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दामात बरोए कार लाए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अहमद रजा शाह गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी थाना सिटी के एरिया बाईपास के करीब मियां अब्बास प्रॉपर्टी डीलर और इनके साथी पर जानलेवा फायरिंग। मियां अब्बास टूबा टेक्सिंग से वापस अपने घर आ रहे थे तो 2 गाड़ियों में सवार 6-7 अफराद पीछे से आए और मियां अब्बास की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में गाड़ी का टायर ब्रेस्ट हो गया, गाड़ी खाई में जा गिरी। मियां अब्बास ने भागकर जान बचाई। सीधी जानलेवा फायरिंग की जद में साथी की दोनों टांगों में फायर लगे और वो गिर गया। साथ ही करीब एक निजी होटल पर बैठे लोग फायरिंग
की आवाज सुनते ही भागकर मौके पर आए तो फायरिंग करने वाले अफराद गाड़ियां भगा कर निकल गए। डीएसपी समंदरी मोहम्मद आसिफ खान, एसएचओ थाना सिटी इंस्पेक्टर इशफाक भट्ट ने मौके पर पहुंचकर जाए वक़्वा का जायजा लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी का अमल शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कसूर अरशद भट्टी ने कलम करान और दर्जा चारम के मुलाजमीन की प्राइवेट स्कूलों 50% फीसों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेयर मोहम्मद यासीन, सदर एपका डिस्ट्रिक्ट कसूर इफ्तिखार हुसैन तबस्सुम, सीनियर नायब सदर एपका कसूर की दरख्वास्त पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कलम करान और दर्जा चारम के बच्चों के लिए सीरियल नंबर 15 पर प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल करने पर 50% कम फीस वसूल की दरख्वास्त की गई, जिस पर अमल करते हुए डिप्टी कमिश्नर कसूर अरशद भट्टी, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कसूर मलक मोहम्मद अनवर नुनारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी कसूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें लिखा गया कि डिपार्टमेंट कलम करान दर्जा चारम के बच्चों के लिए सीरियल नंबर 15 पर प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल करने पर 50% फीस कम वसूल की जाएगी। इस मौके पर हाफिज महबूब नबी खान, जनरल सेक्रेटरी एपका एजुकेशन जिला कसूर, हाफिज हसन जहांगीर, प्रेस सेक्रेटरी एपका एजुकेशन जिला कसूर और दर्जा चारम के दीगर मुलाजमीन की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अहमद रिजा शाह गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक दियार गैर से आए ओवरसीज पाकिस्तानी पर तशद्दुद का मामला। थाना रजकोट में तैनात डॉल्फिन पुलिस और एसएचओ का गनमैन कैसे शहजाद कांस्टेबल पुलिस वर्दी की आड़ में डाकू बन गए। थाना रोशनवाला के दूध से राशिद नामी ओवरसीज पाकिस्तानी को अगवा करके थाना रजकोट ले गए और तमा नफसानी की खातिर तशद्दुद का निशाना बनाया। लवाकिन मुतलका थाना और मुख्तलिफ जगहों पर ढूंढते रहे। जब राशिद का कजन उस्मान थाना रजकोट पहुंचा तो डॉल्फिन एहलकार और गनमैन राशिद को बकरे की तरह जमीन पर लटाकर तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। उस्मान के पूछने पर डॉल्फिन एहलकार और गनमैन शेखपा हो गए और गालियां देने लगे और ऐसे में गैर कानूनी गिरफ्तार कर लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। लवाकिन से गनमैन कैसे शहजाद ने डील शुरू कर दी। डील 60,000 से शुरू हुई और 40,000 में तय पाई। लवाकिन ने फौरी तौर पर कब्जा रजकोट से बजरिया एटीएम ट्रांजैक्शन करके पैसे निकलवाए और इनको दिए, जिसकी वजह से गिरफ्तार अफराद की जान बख्शी हुई। लवाकिन का मजीद ये कहना था कि पैसे हमने इसलिए दिए कि कैसे शहजाद हमारे बच्चों को नाजायज डकैती के मुकदमात में मुलविस करना चाहता था। दौरान तशद्दुद भी यही कहता रहा, फला डकैती मानू वरना डकैत गैंग के साथ मुलविस करूंगा, सारी उम्र जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। लवाकिन ने आरपीओ फैसलाबाद को दरखास्त गुजारी और मेडिकल हासिल करने के लिए मुतल्लिका अदालत से रजू किया। नाजायज गिरफ्तार अफराद और लवाकिन ने वजीर आला पंजाब, आईजी पंजाब, आरपीओ फैसलाबाद, सीपीओ फैसलाबाद से मुतालबा किया डॉल्फिन पुलिस एहलकार और डी गनमैन एसएचओ रजकोट के खिलाफ अगवा और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज किया जाए और ऐसी काली भेड़ों का महकमा से फारिग किया जाए। हम शरीफ शहरी हैं, हमारे साथ इंतहाई जुल्म हुआ है। पीटीआई की साबका हुकूमत की जानिब से नाम नहाज सर्वे की बुनियाद पर लाखों लोगों के नाम बेनजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकालने की वजह से गरीब मुस्तहिक लोग परेशान हैं। ऐसे ही गरीब मुस्तहिक की फरियाद सुनते हैं लाड़काना से ब्यूरो चीफ मोहम्मद अयूब सोमरू इस रिपोर्ट में। जी अयूब सोमरू, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी लाइबा, आज हमारे साथ सिटी प्रेस क्लब लाड़काना में एक साहिब मौजूद हैं। जी इनसे जानते हैं कि इनका क्या मसला है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम गुलबार। अच्छा, आपका क्या मसला है? सर मेरा मसला है, गरीब आदमी हूँ, दवाई करता हूँ, अभी मेरी नज़र कमज़ोर हो गई। पहले पैसे मिल रहे थे, अभी बंद हो गए हैं। अच्छा, तो बंद क्यों है? और आप किसी देवी मुल्क में कभी गए हैं? नहीं सर, मैं गया नहीं। मैं जा रहा था तो मेरे रिश्तेदार रहते थे, वो मेरे को बुला रहे थे। मैंने पासपोर्ट बनवा दिया, फिर पासपोर्ट बनवा कुछ मेरे को नहीं बुलाया, मैं नहीं गया। पासपोर्ट बनवा मैं गया नहीं होता, पैसे मेरे बंद हो गए। अच्छा, ये नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि ये बेचारा गरीब आदमी कमाने के लिए सऊदी जाने के लिए इसने पासपोर्ट बनवाया, लेकिन हुकूमत ने समझा कि भाई ये अमीर आदमी है, इसने पासपोर्ट बनवाया है, हालांकि ये कभी पाकिस्तान से बाहर गया नहीं। तो लिहाजा अभी हुकूमत पाकिस्तान को इस सिलसिले में जो मुनासिब वो बेहतर लगे कि एक गरीब आदमी 3 साल से इनकी सपोर्ट बंद है, फाइनेंशियल सपोर्ट बंद है, तो इसके पैसे जारी किए जाएँ। कैमरामैन रामा लिट्ठो के साथ मोहम्मद अयूब सुमरो, C49 लाड़काना।
डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन बहावलनगर तनवीर अहमद हमायूं ने अपने बयान में कहा कि हैका इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर हैं। हतमी इंतखाबी फहरिस्त आने वाले आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल कर ली गई है। इनका कहना था कि जिला बहावलनगर में नई मरदमशुमारी 2023 के मुताबिक हतमी हल्का बंदियों में कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होने जा रहे हैं। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों के मुताबिक जिला बहावलनगर में मर्द वोटर्स की तादाद 10,26,003 है, जबकि खवातीन वोटरान की तादाद 8,51,333 पर मुश्तमिल है। इस तरह वोटरों की कुल तादाद 18,70,333 है, जो आने वाले जनरल इलेक्शन में अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन मजीद कहना था तमाम दर्जों खवातीन औरत वोट इंदराजात हतमी इंतखाबात रिश्तों में मौजूद हैं, वो अपने वोट के इंदराजात के मुतालिक तफसीलात इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ्राहम करदा SMS मोबाइल सर्विस 8800 से अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख कर चेक कर सकते हैं। उन्होंने जिला भर के अवामुल नास और सिविल सोसाइटी से तल्लुक रखने वाले तमाम मुकातबे फिक्र शहरियों से अपील की हल्का इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेकर अवाम इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए अपना कौमी और मिली फरीजा अदा करें ताकि मुमलिकत खुदा पाकिस्तान माशी और जमहूरी तौर पर तरक्की करे। खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा C49 न्यूज़ के महर फैज सनपाल से। सनपाल प्रीमियर लीग सीजन 5 की ड्राफ्टिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया। ये लीग 7 टीमों पर मुश्तमिल होगी। ड्राफ्टिंग में तमाम टीमों के ओनर्स और कंपनियों ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर महर हक नवाज सनपाल ने कहा कि जीतने वाली टीम को 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और सब दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये लीग 3 अलग अलग ग्राउंड्स में खेली जाएगी। तकरीब में सनपाल बरादरी के अलावा काफ़ी लोगों ने शिरकत की। खुसूसी आमद हाजी मोहम्मद अफजल सनपाल, न्याज सनपाल, रहमत सनपाल, न्याज शहबाज सनपाल, माही सनपाल, जवेद इकबाल सनपाल, शकील नासिर, ओंसर राना, असदुल्ला, खालिद नंबरदार, जाहिद नज़ीर, अली असगर, मुर्तज़ा पढ़ाना और दीगर दोस्त शामिल थे। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।